Hello everyone, my name is Aryan Saraswat and today we are here to discuss about the weekly contest 404. So we will basically start with reading each of the problem statements, understand what the question says, try to build an intuition for every problem and then we will see the solution. So overall it was a quite easy contest and the easiest question I would say is the question D. अभी इसकी अप्रोच देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था बट ओवरऑल द क्वेश्चन वाज प्रीटी इजी सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स so the very first question was maximum height of a tree. You are given two integers, red and blue, representing the count of red balls and blue colored balls. You have to arrange these balls to form a triangle such that the first row will have one ball, second row will have two balls, and third row will have three balls, and so on. And all the balls in a particular row should be same color, and adjacent rows should have different colors. All right, return the maximum height of the triangle that can be achieved after this. Let's understand the problem statement first. So basically, we have given two things: red, which describes the count of red balls, and the second thing is blue, which describes the count of blue balls. So basically दो कलर्स की हमें बॉल गिवन है और हमें उन्हें कुछ इस ऑर्डर में अरेंज करना है लाइक दिस. First row will have one ball, second row will have two ball, third row will have three balls. Similarly, fourth row will have four balls in it. इस पैटर्न में अरेंज करना है and constraints are कि if we start with blue color, then the second row can only have red. Similarly, the third will have blue, and again, the last one will have three. So this was the pattern that we do need to follow in this. So the question was pretty easy क्योंकि इसके constraints भी काफी low थे. As you can say, as you can see, it's around 100. So कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. We just need to start with, let's say we start putting the blue ball here. So blue ball रखने के बाद what I know, let's say the total count was B. So I know I had put one ball here, तो मुझे इसमें से one decrease करना पड़ेगा. This is after the first row. When I reach to third row, I know I do need to put three balls. If this thing is already greater than three, then I can put three balls. else मैं रख ही नहीं सकता. So basically, अगर रख सकता हूँ, तो I will decrease those three from it, and this pattern follows till the end. Similar goes for red, and it's not necessary. Question में ये चीज given थी कि थोड़े अगर उसकी explanation देखो कि he started putting blue balls first, but ये necessary नहीं है कि blue balls से ही initialize करना है आपको. You can start with putting a red ball here, then blue balls, then red balls, and so on. ऐसा पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं. There isn't any constraint with this. सो इनिशियली हम ब्लू भी रख सकते हैं, इनिशियली हम रेड भी रख सकते हैं. जो भी हम इनिशियली रखेंगे उसी के बेसिस पर वो आगे पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा. दिस वाज द बेसिक थिंग इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं था. सो टू अंडरस्टैंड द अप्रोच, एक बेसिक सी चीज है. लेट्स से ये हमें क्लियरली ऑब्जर्व करने पे ही समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर रो में हमें नंबर ऑफ रोज जितनी है उतनी ही बॉल रखनी है. पहली रो में एक बॉल रखनी है, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में तीन, एंड सो ऑन. ये चीज ऑब्जर्व करके ही क्लियर है. सेकंड थिंग, इफ आई स्टार्ट विद ब्लू एंड आई एम एट फर्स्ट रो, मुझे कितनी बॉल चाहिए? वन. इफ बी इज ग्रेटर देन वन, देन मैं यहाँ पर एक बॉल रख सकता हूँ. इफ नॉट, मैं रख ही नहीं सकता यहाँ पे बॉल. आई नीड टू रिटर्न फ्रॉम एयर. भाई मैं इतना ही रख सकता था रोज, इसके आगे पॉसिबल रखना ही नहीं है. कोई भी एक बॉल का काउंट अगर खत्म हुआ मेरे पास, तो आई कैन नॉट पुट फर्दर रोज इन दिस ट्राइंगल पैटर्न. सो सिमिलरली, इफ मैंने ब्लू यहाँ रखी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उस साइड सपोज ज्यादा क्लैरिटी रहेगी. Let's go with the first example. Red 2, blue 3. Okay. So basically,
red 2 and blue. All right. So let's suppose I started putting red balls first. मैंने एक red ball रखी. I know क्या अभी currently मेरा red का count is greater than 1 है. And let's take a row. It's 1 initially. First row, if let's write it again. So if my R is greater than row, then only मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पर. इफ है तो मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे आर में से नंबर ऑफ रोज डिक्रीज कर देनी है कि मैंने एक बॉल यहाँ पे रख दी. बिल्कुल भाई सही बात है. एल्स इफ मैं रख ही नहीं सकता, आई नीड टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज कि बेसिकली, और रो भी क्यों, रो -1 कि मैं करंट रो तक रख ही नहीं सकता, मैं इससे पहले रख सकता था. तो इस एल्स वाले पार्ट को भी बाद में आते हैं. अभी तक जब तक मिल रही है, लेट्स गो विद इट. नाउ आई नीड टू पुट two blue balls here and the number of row is 2. So if my blue is greater than row now, तब मैं रख सकता हूँ. क्या मेरा blue is greater than row है? Ideally yes. अब अपडेटेड मेरा ये हो गया है 1 and blue is greater than row, so I can put here basically I need to subtract the number of rows from the blue count. मैंने वो subtract कर लिया. उसको subtract करने के बाद we need to go down further. इस केस में हम क्या करेंगे, we will increase the count of the row. The new count will be 3 and blue has also been reduced by 2, so it will be 1. So from here I know मैं थर्ड रो पे हूँ. अब मुझे 3 रेड बॉल्स रखनी है. क्या अब आई कैन प्लेस 3 रेड बॉल्स, क्या मेरा रेड बॉल्स का काउंट मेरे करंट रो नंबर से ज्यादा है? नो, बिकॉज मेरा 1 है रो काउंट, सॉरी नंबर ऑफ रेड बॉल्स मेरे पास अवेलेबल, एंड रो काउंट मेरा 3 है, तो मैं 3 बॉल्स रख ही नहीं सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली कहाँ तक रख पाया, मैं इतना ही रख पाया. ये पॉसिबिलिटी बची नहीं. मैं -2 सॉरी रो -1 मैं रिटर्न करा सकता हूँ. सो बेसिकली अब हमने ये समझ में आया कि अगर हमने ये एग्जांपल में रेड बॉल से स्टार्ट करा होता, तो मैं 2 लेवल्स तक या 2 रोज तक ही प्रिंट करा सकता था इसको, पैटर्न को. मेरा आंसर 2 हो सकता है. व्हाट इफ मैंने ब्लू से स्टार्ट करा होता? लेट्स सी दैट वी हैव अवेलेबल ब्लू 4 and red, blue is 4 and red is. So what if मैंने ब्लू से स्टार्ट करा होता? if क्या मेरा नंबर ऑफ रो इज करेंटली 1, क्या ब्लू इज ग्रेटर देन रो है? बिल्कुल है यार. लेट्स रिड्यूस इट बाय नंबर ऑफ रो एंड इंक्रीज आवर रो टू 2. जब मेरा रो 2 हुआ तो आई नीड टू पुट 2 रो रेड बॉल्स. क्या ये ग्रेटर देन, ये इज इक्वल टू भी चलेगा इस केस में, नॉट एग्जैक्टली ग्रेटर देन. वी कैन गो अप, क्योंकि अगर मेरे को बेसिकली तब मैं रेड बॉल रख सकता हूँ जब तक अवेलेबिलिटी है, चाहे वो 1 है चाहे 2 है, मैं उसको 0 कर सकता हूँ एंड कैन नॉट गो बियॉन्ड 0. सो 2 रो है, क्या मैं 2 रेड बॉल्स रख सकता हूँ? यार बिल्कुल रख सकते हो आप. लेट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ रेड बॉल्स बाय 2 एंड इट विल बी 0. एंड मैंने 2 रेड बॉल्स रख दी. परफेक्ट. नाउ द रो नंबर इज 3, सो आई नीड टू पुट 3 ब्लू बॉल्स. क्या मैं 3 ब्लू बॉल्स रख सकता हूँ यहाँ? लेट्स ट्राई पुटिंग 1 2 3. सो क्या मेरा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स का काउंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू रो है? यार बिल्कुल है. इट्स एग्जैक्टली 3, तो मैं रख सकता हूँ. इसको अगर मैं -3 करूंगा रिड्यूस करा के, तो ये 0 हो जाएगा आगे के लिए. मैंने ये रख दिया. नाउ द नंबर ऑफ रो इज 4. क्या मैं रेड 4 बॉल्स रख सकता हूँ? क्या मेरा रेड का काउंट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू रो है? नहीं है, बिकॉज रो रेड का काउंट इज 0 एंड आई नीड टू पुट 4 बॉल्स, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं. सो बेसिकली मेरा आंसर यहाँ पे क्या हुआ, रो -1. करेंटली रो 4 है बट माई आंसर इज रो -1. तो ये
3 मैं यहाँ पर रोज रख पाया। तो मैं इन दोनों में से मैक्स पॉसिबिलिटी कंसीडर करूंगा। अगर मैंने ब्लू से इनिशियली रखना स्टार्ट किया तो आई गॉट आंसर एज 3, और अगर मैंने रेड से रखना स्टार्ट करा था तो आई वॉज गेटिंग आंसर एज 2। सो मैं इन दोनों में से पॉसिबिलिटीज का मैक्स कंसीडर करूंगा। सो इसका कोड और देख लेते हैं एक बार। कोड वॉज प्रिटी सिंपल। लेट्स copy this, go in this code. Let me reduce it. ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा एक सॉल्व फंक्शन है जो मेरे को स्टार्टिंग फ्रॉम रेड और स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू इररिस्पेक्टिव मेरे को आंसर ला के देगा। सो बेसिकली मेरे पास रेड का काउंट है, ब्लू का काउंट है, एंड फ्लैग है। फ्लैग बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डू आई नीड टू स्टार्ट विद रेड और डू आई नीड टू स्टार्ट विद ब्लू। ठीक है। सो बेसिकली इफ एफ इज सेट, व्हाट आई वाज डूइंग हियर, इफ मेरा फ्लैग सेट है, so I had taken two three things in red is the count of red, blue is the count of blue, and f oh, sorry, let's make it flag. Flag is nothing but if it's one, then I need to take red ball at current row, and if it is zero, I need to take blue ball. Simple. तो ये बेसिकली कौन सी रोल में हम स्विच कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने इसको यूज करा है। सो इनिशियली जो भी मेरे पास फ्लैग आएगा मैंने उसके थ्रू एक एफ सेटअप कर लिया है, एंड रो का काउंट इनिशियली मेरा 0 है। ओके, इफ इन केस दोनों 1 1 आते हैं तो आई नो, ये मैंने सिंपल एक टेस्ट केस गिवन था उसके थ्रू आइडेंटिफाई हो गया था। हियर इट इज, अगर दोनों 1 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि वो तो इनिशियली अंडरस्टूड सी चीज है कि यार अगर चाहे दोनों बॉल का काउंट 1 1 है, मैं इससे स्टार्ट कर दूं उससे स्टार्ट कर दूं, फर्दर मैं जा ही नहीं सकता, तो माई आंसर इज 1 इन दिस केस। तो ये एक चेक लगा लिया था सिंपल टू रिड्यूस द कंप्यूटेशंस। मैं अंदर से उसको ब्रेक नहीं कर देता, एंड मैंने ब्रेकिंग कंडीशंस एल्स वाले पार्ट पे लगाई थी। तो ये वही सिंपल कोड है यार। ये फ्लैग सेट है तो आई नो मुझे रेड बॉल लेनी है, मैंने रेड बॉल ली एंड रेड को डिक्रीज करा दिया बाय रो नंबर। सिमिलरली अगर एल्स वाले केस में जाता हूँ, हियर अगर मैं एल्स वाले केस में जा रहा था तो आई नीड टू रिटर्न रो -1। यहाँ से भी आप रिटर्न करा सकते हो, मैंने इस लूप से ब्रेक करा करके बाहर रिटर्न रो -1 रिटर्न कराया। सिमिलरली अगर फ्लैग नॉट सेट है मेरा तो आई नीड टू रिड्यूस ब्लू का काउंट, और वो भी तब जब वो करेंट रो से ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है। तो उस केस में मैं इसको रिड्यूस कराऊंगा, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू पुट दी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हियर, उस केस में ब्रेक करा के आई विल रिटर्न रो -1। और ये कुछ नहीं है, ये फ्लैग को टॉगल कराया हुआ है फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 0, एंड यहाँ ना मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज का मैक्स, एंड दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू। इन दोनों पॉसिबिलिटीज का जो मैक्स आएगा आई विल रिटर्न इट। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। ये बेसिकली एसएफटीटी कोड है, तो वी कैन आल्सो चेक दिस। इट्स वर्किंग, लेट्स सबमिट इट एंड it gets accepted. So this was the code for problem A. काफी straightforward question था ये। Let's move on further. Let's see the second. Oh हाँ, so basically second and third problem was pretty much same. कोई difference नहीं था दोनों problems के अंदर। तो आई वुड सजेस्ट जब भी क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन एनकाउंटर हो आप लोगों को जो प्रीटी मच सेम है, एंड आइदर डिफरेंट इन सम कंडीशन और डिफरेंट इन द कंस्ट्रेंट्स,
तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स इनिशियली इजी प्रॉब्लम में छोटा होता है और समवेयर अराउंड 2000, एंड जो उसका हार्डर वर्जन होता है उसमें इट गोज अप टू 10, सॉरी 10 टू द पावर 5। सो ऐसे केसेस में आई वुड सजेस्ट गो फॉर द हार्ड प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो हार्डर प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी तो द इजियर वन इज टोटली सॉल्वेबल और वो उसमें सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस केस में मैं सजेस्ट हमेशा यही करूंगा, गो फॉर द हार्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी हम सेकेंड प्रॉब्लम इसमें केस में अप्रोच डिस्कस करेंगे, एंड उसी के बेसिस पर सेकंड प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व कर दोगे। कोई भी डिफरेंस नहीं था दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर, दे वर प्रीटी मच सेम। बस द डिफरेंस वाज हियर इन द सेकंड प्रॉब्लम, the thing is to use modulus 2, and in the third problem we need to use modulus k, but the approach I use उसकी वजह से constraints पे कोई डिफरेंस नहीं है। So let's discuss with the third problem, and उसके बाद हम सेकंड एक बार देख लेंगे बेस, जो कि वो इसी बेस्ड है। Okay, so the question is you are given a integer array nums and a positive integer k. Let's note it down. So we have discussed the problem A. Let's discuss C, and then we will discuss the second problem. And याद रखना D सबसे easy है, problem C. So we are given an array num of length n and k. A subsequent sum of number with length x is called valid if it satisfies. एक subsequence है, let's say subsequence, I guess I hope सब लोगों को पता होगा। Let's suppose we have an array a 1 2 3 4 up to a n। तो subsequences कुछ नहीं होता यार, subsequences बेसिकली मैं इसके कितने भी पार्ट को कंसीडर कर सकता हूँ। लाइक मैं ये एलिमेंट ले लूँ, दिस एलिमेंट में ये ले लूँ, फिर मैं एक ये दो एलिमेंट ले लूँ, फिर मैं लास्ट एलिमेंट ले लूँ, सो ऑन। तो इस तरीके से कोई सब्सीक्वेंस बनता है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि यार मेरे को सारे कंटिन्यूस लेने हैं, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए कि A2 मस्ट कम आफ्टर एवरी एलिमेंट जो उससे पहले है। सिंपल सी कंडीशन होती है सब्सीक्वेंस की। और सब्सीक्वेंस ऑफ सब्सीक्वेंस valid if it satisfies this and return the length of the longest valid। So basically उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि सब्सीक्वेंस वैलिड है इफ वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराता है, एंड अगर वो कराता है तो ऐसा कौन सा सब्सीक्वेंस है जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो। अब भी मैं अगर पहले क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो इंट्यूशन बनाऊंगा इसकी पीछे ही। सो उसने बोला है कि वो जो सब है सब्सीक्वेंस है बेसिकली वो एक्स लेंथ का है और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली लेट्स कंसीडर सब्सीक्वेंस इसी की तरह, जैसे वो कह रहा है कि सब वन सब टू अब टू सब x-1 यही होगा, क्योंकि अगर x लेंथ है तो x-1 इंडेक्स तक नंबर होंगे उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 0। लेट्स राइट इट सब 0, ऐसा कुछ कह रहा है। मतलब इन दो नंबर्स का सम प्लस मॉड, सम सब सॉरी सब 0 प्लस सब 1 मॉड के, फिर इन दोनों नंबर्स का इट विल बी सब 1 प्लस सब 2 मॉड के। ये क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी इक्वल। बेसिकली ये मैंने लगा दिया है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंड दिस कंडीशन वर्क्स फॉर एवरी सब्सीक्वेंस, मतलब लास्ट में जो आएगा इट विल बी सब ऑफ x-2 प्लस सब ऑफ
x-1 इन दोनों का सम मॉड के। यार इसके इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ बतानी है हमें। तो क्या, एक अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, आई होप अगर आप लोग कॉन्टेस्ट दे रहे हो वेक्टर के, तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी को एनकाउंटर हुआ होगा विद द नेम LIS। इसका क्या मतलब था? लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ये हर किसी ने कभी ना कभी एनकाउंटर करा होगा, एंड वी नो कि ये डीपी से कैसे सॉल्व होता है। अगर मैं इसकी इनिशियल अप्रोच डिस्कस करूं, सो इट वाज समथिंग लाइक दिस कि यार ये अरे है। ओके, कहाँ चला गया? लेट्स इरेज दिस। तो यार इनिशियली कोई एरे है, बोलिए बता रहा हूँ LIS का मतलब क्या है। यार यहाँ पे कोई एलिमेंट पड़े हैं, यहाँ पे, यहाँ पे सम एलिमेंट्स। सो बेसिकली जो ये एलिमेंट है, ये किस किस के साथ सबसीक्वेंस बना सकता है? इट कैन मेक सबसीक्वेंस विद द प्रीवियस एलिमेंट, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले, वो किसी के भी साथ सबसीक्वेंस बना सकता है इनमें से। एंड जो सबसीक्वेंस बनाने की कुछ कंडीशन होती है, तो वो हम चेक करते थे कि मैं करंट आई पे खड़े होकर के ये मेरे कौन कौन से सबसीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट हो सकता है, जिनका भी हो सकता है। मैं वहां तक की लेंथ यूज करता था एंड उसमें ऐड करा देता था +1, क्योंकि एक में ऐड हो जाऊंगा। सो अगर ये चीज नहीं हिट कर रही है तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था, ऑलमोस्ट उसी पे बेस्ड था। बस थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन सी, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स थोड़े डिफरेंट है कि ये है, और द वैल्यू इज लार्ज इन द सेकंड क्वेश्चन, तो उसकी वजह से थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट थी, बट इट वाज काइंड ऑफ बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन। एंड अभी फोर्थ क्वेश्चन पे भी आऊंगा, वो काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, सो इस क्वेश्चन में यार थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन से ये ऑप्टिमाइजेशन आ गई थी, एल्स मैंने भी सेकंड क्वेश्चन में एन स्क्वायर अप्रोच यूज करी थी। सो बेसिकली लेट्स, कभी भी डीपी का क्वेश्चन आए, सो अगर मैं LIS की बात करूं, मैं बता देता हूँ कि LIS से मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो वो दोनों चीज लिख देते हैं। LIS में जो हमारी डीपी की स्टेट होती है, डीपी ऑफ आई, इट रिप्रेजेंट्स मैक्स लेंथ ऑफ subsequence ending at i। ये सबको पता होता है कि यार मैं यहाँ पे डिनोट क्या करूँ डीपी के अंदर, कि यहाँ तक के सबसीक्वेंस की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है पॉसिबल, इफ मैं इसको इंक्लूड कराता हूँ। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, जो इसकी ट्रांजिशन होती है, बेसिकली डीपी में कुछ नहीं है। डीपी का अगर क्वेश्चन आ जाए ना, दो चीजें देखनी है हमेशा, दो चीजें। पहली चीज, स्टेट आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, एंड सेकेंड थिंग इज ट्रांजिशन। अगर आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई, क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता डीपी का, सिंपल आइटरेटिवली फिल कर देना होता है, दैट्स इट। सो यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये मेरी स्टेट हो गई LIS केस में। व्हाट विल बी द ट्रांजिशन? ट्रांजिशन इज लाइक dp ऑफ I is equal to max of dp of I, comma dp of j plus 1, and this j is basically from 0 to I, and condition, जो भी कंडीशन होती है, वेदर इट्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और एनीथिंग, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारी ट्रांजिशन होती है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ,
तो इससे पीछे जितने भी एलिमेंट सब सीक्वेंस के हो सकते हैं, मैं उनसे कंपेयर करूंगा, जो हैं उनके साथ जोड़ के बना लूंगा सब सीक्वेंस। बट दिस टेक्स टाइम अप टू एन स्क्वायर। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये थर्ड क्वेश्चन में तो वर्क कर जाएगी, बट सेकंड क्वेश्चन की कंस्ट्रेंट से 10⁵ वहां नहीं वर्क करेगी। तो देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में भी इसको इंस्टेड ऑफ एन स्क्वायर कुछ और बेटर कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर बेटर कर सकते हैं तो मे बी हम सेकंड में भी सेम अपनी अप्रोच यूज कर पाए। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। सो उसके लिए व्हाट वी विल डू, लेट्स मेक इट स्टेट। ये बेसिकली थर्ड की अप्रोच है। हियर डीपी ऑफ आई कॉमा मॉड वैल्यू। तो इसमें एक चीज समझ में आ रही है यार, अगर मैं सबसीक्वेंस से देखूं, देखो यहाँ पे अगर मैं सबसीक्वेंस वाला देखूं तो जो भी वैल्यूज होंगी आफ्टर गेटिंग मॉड फ्रॉम के, वो क्या हो जाएंगी, आइदर 0, 1, 2 और मे बी अप टू के माइनस। मॉड होने के बाद इसके बाद तो और कोई वैल्यूज नहीं बचती ना। तो जो भी मेरी वैल्यूज हो जाएंगी वो सारी इसी रेंज में लाया करेंगी। तो मेरी मॉड की वैल्यू इतनी ही हो सकती है। सो जो कोई सबसीक्वेंस होगा, लेट्स से सब एक सबसीक्वेंस है, उसके अंदर जो मेरी करंट स्टेट होगी वो क्या डिनोट करेगी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ subsequence with given condition, with given condition and ending at ith index। ये चीज क्लियर है। तो इसके बाद हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर मैं इस आई को ये लेट्स टेक इट एज करंट नंबर। ठीक है, ये हम अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सो जब हम ith इंडेक्स पे होंगे, ith इंडेक्स पे जो हमारा करंट नंबर होगा, इट विल बी ए ऑफ आई। ठीक है, तब जो ये ए आई है, ये अपने से पीछे, अगर मैं इसको डिनोट करके दिखाऊं, तो जो भी ये ए आई है, दिस इज लाइक ए आई, ये अपने से पीछे किसी भी एलिमेंट का सबसी पार्ट हो सकता है सीक्वेंस बनाने में। ये पार्ट तो क्लियर है। इट कैन ऐड विद गेट एडेड विद दिस, इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ, किसी के साथ जुड़ सकता है, बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये तो ऑब्वियसली वाला जो कंडीशन गिवन है हम उसको सेटिस्फाई कराएंगे ही कराएंगे। उसके बाद वो किसी के भी साथ जुड़ सकता है और मैक्सिमम लेंथ बना सकता है। हो सकता है इसके साथ जुड़ करके इट्स मेकिंग अ लेंथ टोटल 3, बट इसके साथ जुड़ करके इट्स मेकिंग अ टोटल लेंथ 4। कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वी हैव टू चेक एवरी ऑफ दिस, बट ये भी हमने देखा कि अगर मैं पीछे जा जाके बार बार चेक करूंगा तो इट विल एंड अप गेटिंग एन स्क्वायर। तो इसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो ये जिसका भी पार्ट होगा, उस मॉड की वैल्यू, दिस मॉड वैल्यू, ओके, सो दिस मॉड वैल्यू विल बी बिटवीन दिस, इससे बाहर तो नहीं जाएगी, ये कंफर्म है। सो विल ट्राई टू मेक कि हमारा जो ये करंट नंबर है वो पॉसिबल जिस जिस सीक्वेंस का पार्ट है उसमें से मैक्स लेने की कोशिश करेंगे। कि यार मेरा ये सोच क्या कर रहा है कि मैक्स सीक्वेंस विद गिवन कंडीशन एंड एंडिंग एट दिस। गिवन कंडीशन इज क्या है, गिवन कंडीशन इज लाइक मॉड वैल्यू, कि ये सेम मॉड वैल्यू किस किस की आई हुई है पहले। ये सेम मैं कहता हूँ कि लेट सपोज इससे पहले मॉड वैल्यू 0 आई हुई है 4 एलिमेंट की, और
एक चीज मैं भी देखता हूँ कि यार क्या मेरा करंट एलिमेंट भी मॉड वैल्यू 4 यील्ड कर रहा है, कहीं पे कर रहा है तो मैं उसके साथ जोड़ सकता हूँ। मैं उसको, सॉरी, करंट 0 यील्ड कर रहा है तो उस केस में मैं जोड़ सकता हूँ। तो आई विल ऐड +1 टू दिस 4 और मेरा 5 लेंथ हो जाएगी। क्या पीछे किसी की 1 आई है, उनका काउंट 5 है, तो यार मैं इसके साथ जोड़ दूंगा अगर मैं 1 भी यील्ड कर सकता हूँ तो। बट ये यील्डिंग किस पे डिपेंड करती है, करंट की? खाली करंट एलिमेंट से तो मैं मॉड चेक नहीं कर सकता। आई नीड टू गेट द प्रीवियस एलिमेंट। प्रीवियस एलिमेंट भी चाहिए ना करंट एलिमेंट को ऐड कराने के लिए, क्योंकि उसने बोला है कि सब ऑफ 0 या सब ऑफ i-1 प्लस सब ऑफ आई मॉड के, ये इक्वल होना चाहिए। तो इसके से मुझे ये प्रीवियस एलिमेंट भी तो चाहिए। हाउ विल आई फाइंड दिस? अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं तो मेरे लिए क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं उसके बाद तो। अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं तो क्वेश्चन काफी प्रीटी इजी हो जाएगा मेरे लिए। ये कैसे फाइंड आउट करें कि यार प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा? सो लेट सपोज मेरा जो करंट एलिमेंट है वो किसी प्रीवियस के साथ जोड़ करके क्या ये करंट मॉड वैल्यू दे रहा है? मॉड्यूलस तो यार के से ही होगा, ये कंफर्म है। बट जो मॉड वैल्यू है, ठीक है, अब मॉड वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मॉड वैल्यू कैन लाई इन दिस रेंज। ठीक है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी? जिस भी सबसीक्वेंस के साथ सेटिस्फाई हो रही है, मैं उसमें +1 लेंथ ले सकता हूँ। अब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए इफ आई ओपन दिस अप, सो इट विल बी करंट मॉड के प्लस प्रीवियस एंड मॉड के इज इक्वल टू मॉड वैल्यू। अगर मैं इसमें से प्रीवियस नंबर को एक्सट्रैक्ट करूंगा, सो इट विल टर्न आउट टू बी दिस, प्रीवियस नंबर रहेगा और मॉड वैल्यू तो उधर ही है। मॉड वैल्यू वही है ना, देते हैं। लेट्स टेक आर करंट टू दैट साइड, मॉड के, एंड आई नीड टू गेट प्लस के एडेड, क्योंकि ये आपको पता होगा माइनस होने पर मॉड के साथ देयर में भी सम कंडीशन जब नेगेटिव आए तो उस केस में हम प्लस के फिर प्लस मॉड ले लेते हैं ताकि वो कंडीशन हमेशा पॉजिटिव रहे। सो इससे मेरे को प्रीवियस नंबर मिल जाएगा। सो वेन एवर आई विल बी एबल टू गेट द प्रीवियस नंबर, अब मुझे पता है कि यार जो मेरी करंट स्टेट है वो किस पे डिपेंडेंट है। मेरी करंट स्टेट जो है डीपी ऑफ, लेट्स से करंट कॉमा मॉड, ये किस पे डिपेंडेंट है? इट्स मॉड वैल्यू, ये किस पे डिपेंडेंट है यार? इट ओनली डिपेंडेंट ऑफ डीपी ऑफ प्रीवियस नंबर और मॉड वैल्यू। अभी प्रीवियस नंबर कहाँ से आया? ये भी हमने देखा, प्रीवियस नंबर आएगा इस इक्वेशन से। कि बेसिकली स्टेट ऑप्टिमाइजेशन होती है डीपी में कि यार इस स्टेट को मैं ना स्टोर करा करके एंड आई कैन गेट इट ऑन द गो। कैसे गो ले सकता हूँ मैं? आई कैन फाइंड आउट विद इस करंट और मॉड वैल्यू, ये दो चीजों पर डिपेंडेंट है। करंट मेरे लिए फिक्स है, मॉड वैल्यू मेरी क्या हो सकती है? मॉड वैल्यू कैन बी फ्रॉम 0 to k-1। मैं इन सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए चेक कर लूंगा कि मेरा प्रीवियस क्या आ रहा है। तो जो भी मेरा प्रीवियस बन रहा है मैं उसके साथ एक सबसीक्वेंस बना सकता हूँ, और जब बना सकता हूँ तो आई एड +1 टू दिस, और इसके साथ मैं अपने आंसर को मैक्सिमाइज करा लूंगा। और जितने भी पॉसिबल आंसर्स मेरे बन रहे हैं उसके साथ मैं एक ग्लोबल आंसर भी यूज करूंगा जिसको मैं मैक्स कराऊंगा। क्योंकि व्हाट इफ कोई लेंथ बीच में ही मैक्स मिल रही है मेरे को और लास्ट तक नहीं मिल रही, सो मेरे को हर स्टेप पर उसको मैक्स चेक करना पड़ेगा, जैसे हम जनरली एलआईएस में करते हैं। सो इट विल बी डीपी ऑफ करंट और मॉड वैल्यू। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि यार इस तक कैसे है। बेसिकली हमने करा क्या, ये प्रीवियस पहले मैं कैसे कैलकुलेट करता था, ये मैं प्रीवियस पहले पीछे आइटरेट करके चेक करके आता था। बट आई नो अगर मैं आइटरेट करने जाऊंगा पीछे प्रीवियस के लिए आई विल गेट टीएलवी फॉर श्योर। सो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने क्या करा, ये मैथ की इक्वेशन के थ्रू एक लीनियर रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ये वाला। दिस वाज द गोल्डन पॉइंट है कि मैंने ये रिलेशन डिराइव कर लिया
उसके बेसिस पे मैं प्रीवियस नंबर सारे फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्रीवियस नंबर मैं तभी ले पाऊंगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके देगा। नहीं करके दे रहा है तो वो कभी बन ही नहीं सकता। और अगर करके दे रहा है तो आई नो कि यार ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है। और इस केस की अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, सो बेसिकली फॉर एवरी करेंट नंबर्स कैन बी, जो भी मेरा करंट नंबर होगा वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। मैं काउंट की बात कर रहा हूँ, करंट नंबर का जो काउंट होगा, इट कैन बी फ्रॉम 1 to n, एंड n इज हियर 10⁻³ ठीक है। और k इन्होंने दिया हुआ है हमें कितना, कि कैन गो अप टू 10⁻³ सो बट इफ आई सी, जो मेरा सोल्यूशन बनेगा, मैं इसमें क्या करूंगा, हर करंट नंबर के लिए सारी मॉड वैल्यू चेक करूंगा। सारी मॉड वैल्यू चेक करने का मतलब है 0 से k-1 वैल्यू चेक करना, एंड इसका मतलब इतनी वैल्यू चेक करना। सो बेसिकली मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसके अंदर, n into k, where n is what, length of array, and k is what, the given key, or I can say the mod values। तो अगर मैं इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करूं, क्या यार 10⁻³ इंटू 10⁻³ वर्क करेगा? लेट्स सी, इट टर्न्स आउट टू बी 10⁻6। यार बिल्कुल वर्क करेगा। तो आई होप अब ये चीज क्लियर होगी कि यार हमने क्या ऑप्टिमाइजेशन करी, कि जिस वजह से इंस्टेड ऑफ LIS टेक्निक में कि मैं जो सारे प्रीवियस जाकर के चेक करके आऊं क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को चेक करूं जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ऑल राइट, अब मैं इसको फिल करा सकता हूँ बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स ट्राई टू राइट कोड फॉर दिस। मैं कोशिश करता हूँ इसका कोड हम खुद लिखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। और अगर आपने ये लोग आप लोगों ने ये कोड लिख लिया, तो आई एम प्रिटी श्योर सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते ही हम ये कोड अपने आप चेंज कर लेंगे और यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, नथिंग डिफरेंट, एक लाइन भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, एक सेकंड देना, ये पूरे चेंज करना। ओके, सो लेट्स गेट द साइज ऑफ देयर। ओके, सेव कर, ठीक है, लेट्स गेट द साइज। उसके बाद हमें पता है कि हमें जो डीपी बनानी पड़ेगी। जनरली हम क्या करते हैं, डीपी को एक साइज प्लस बना देते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। अब लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, हाँ ये अच्छी चीज है कि हम डिस्कस करें इसको भी, कि व्हाट विल बी द साइज ऑफ डीपी। इसमें यार दोनों चीजें, लेकिन मैं एक बात पूछूं कि जो मेरी करंट वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं एंड जो प्रीवियस वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं, वो हम सारी बाय मॉड के स्टोर नहीं करा रहे, क्योंकि बेसिकली हमें सारा कुछ चाहिए ही इसी ऑपरेशन के अंदर। तो जो मेरी वैल्यूज भी होंगी, दैट मे बी अप टू, क्या हो सकती थी, लेट्स चेक द, दैट मे बी अप टू 10⁻7। बट लेकिन जब हम मॉड, ये हम वैल्यूज जो है मेरी, दैट कैन बी 10⁻7, ठीक है। बट इस केस में हम सारी वैल्यूज को ना मॉड के करके स्टोर करा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एवरी वैल्यू विल कम अंडर दिस रेंज। उसकी वजह से जो मेरी वेक्टर डीपी बनेगी, डीपी विल बी बेसिकली ऑफ के इंटू के। इसके अंदर मेरे को सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे फ्रॉम 0 to k-1। सिमिलरली इधर भी मिल जाएंगे। तो मुझे उस स्टेज में रेंज की टेंशन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर मैं मॉड के नहीं कराता तो उस केस में 10⁻7 कराना पड़ता, एंड 10⁻7 इंटू 10⁻3 वर्क ये भी करता, बट दैट वाज नॉट मच ऑप्टिमाइज्ड वे। तो जब मुझे पता है कि मैं डील ही सारा मॉड के केस में कर रहा हूँ, मैं वैल्यू सारी मॉड करके ही यूज कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट स्टोर देम डूइंग द मॉड। ठीक है, तो लेट्स राइट द कोड फॉर दिस। सो वेक्टर ऑफ वेक्टर and type dp, and it will go up to this k int k comma 1, let's keep it 0, फिर तो हम बेसिकली कर ही लेंगे। ठीक है, सो माय आंसर इज इनिशियली 1, क्योंकि एक लेंथ तो यार होगी होगी किसी भी केस में।
Okay, so let's iterate on the array dp of, sorry, let's first find the current number. Current number is equal to nums of I mod k। ठीक है, ये हमने भी देखा था कि हम अपने करंट नंबर को नम्स ऑफ आई मॉड के ले रहे थे। ये मेरा करंट नंबर है। ओ, let's not know this। ठीक है, तो ये मैंने अपना करंट नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब जो मेरा प्रीवियस नंबर होगा वो मेरी मॉड वैल्यू पे डिपेंड है। तो लेट्स राइट इट, मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 0, मॉड वैल्यू विल बी लेस देन के और इज इक्वल टू लेट्स टेक के माइनस वन, मॉड वैल्यू प्लस प्लस। ठीक है, फॉर एवरी दिस मॉड वैल्यू हम यही सेम इक्वेशन यूज करेंगे जो भी हमने ऊपर डिराइव करी थी, विच इज दिस। प्रीवियस नंबर जो भी पॉसिबल होंगे वो सारे इस इक्वेशन के थ्रू आएंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द प्रीवियस नंबर्स। तो जो प्रीवियस नंबर होंगे विच दे विल बी लाइक मॉड वैल्यू माइनस, अब करंट मॉड के मैंने पहले ही करा लिया है, सो यहाँ कराने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट यूज करंट प्लस के एंड मॉड्यूलस के। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आई नो कि ये सारे पॉसिबल पॉसिबल प्रीवियस नंबर्स मैं ऐड करा ही सकता हूँ। उस केस में माय अपडेशन और ट्रांजिशन विल वुड बी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ डीपी ऑफ प्रीवियस विद सेम मॉड वैल्यू। क्योंकि ये सेम मॉड वैल्यू का चक्कर ही रहेगा, क्योंकि हमें ये कंडीशन मेंटेन करके चलनी है। और जब मैं अपनी करंट को फिल करा चुका हूँ तो आई कैन मैक्सिमाइज इट विद द आंसर। ठीक है, बट अच्छा यहाँ मॉड वैल्यू मिलेगी नहीं बाहर आके। So either we do need to initialize it। अच्छा मॉड, चलो अंदर करा लेते हैं मॉड, क्योंकि वो मॉड वैल्यू यार बाहर मिलेगी नहीं इन एवरी केस। सो दिस वाज द कोड, यहाँ से नथिंग, जस्ट रिटर्न द मॉड वैल्यू, सॉरी आंसर फ्रॉम हियर एंड what all that is this thing। Alright, so let's try to run this code। Math of dp of previous, okay, it has to be with something जो कि है हमारे केस में करंट एंड मॉडल। वो डायरेक्टली मैच नहीं करा सकते, वी नीड टू कंपेयर दोस टू वैल्यूज। ओके, व्हाई इज इट गिविंग नॉर्मल, लेट मी चेक द कोड। सो इनिशियली वी हैड टू टेक एवरी वैल्यू नम्स, लेट्स टेक इट मॉड के। ठीक है, मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 0, इंटीजर इज इक्वल टू मॉड माइनस करंट, मैक्स ऑफ करंट नंबर। ठीक है, टेक दिस कोड and let's analyze this case। ठीक है, and up to 0, all right, answer 1। ठीक है, number every number mod k we had taken। ठीक है, so mod value will be between 0 to k minus 1 and previous is equal to mod
माइनस करेंट प्लस के के ठीक है dt ऑफ करंट मॉड वैल्यू इक्वल टू dt ऑफ ओके दिस इज लाइक प्लस वन प्रीवियस वाले के साथ हमें प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि हम उसमें ऐड करा रहे हैं बेसिकली करंट एलिमेंट मेरे पिछले वाले सब में ऐड होके एक लेंथ इंक्रीज कर देगा तो ये पार्ट मिस हो गया था लेट्स रन इट अगेन and it's passing. Let's submit it. And it got accepted with 94 ms. So I hope ये चीज clear होगी how it was related to LIS, how we can optimize that thing और कैसे हम इस solution तक आए यहाँ पे जाकर के second question दिखाऊं. Just read the second question. Second question read करने के बाद आप एक चीज देखोगे कि यहाँ questions में nothing is different. Instead of k, they had given us 2 and constraints were like 10 raised to the power 5. So अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें अभी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई थी इट वाज लेट्स राइट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लियरली तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज लाइक n into k क्योंकि हमने हर नंबर के लिए सारी मॉड वैल्यूज ट्रेवर्स करी थी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाज k into k in our case we can take it up to 10 to the power 7 into k but that was senseless so it was k into k so in second problem क्या ये सेम सॉल्यूशन वर्क करेगा लेट्स सी दैट सो इन क्वेश्चन नंबर 2 k is fixed that is 2 and n is up to 10 raised to the power 5 so will 10 raised to the power 5 into 2 times complexity works obviously yes because it's linear तो work करेगा ही करेगा and what will be the space complexity in this case 2 into 2 so it's almost constant तो ये अगर हमने सी सॉल्व करा है तो बेस्ड ऑन इट डी तो प्रिटी मच इजी है वी जस्ट नीड टू टेक 2 instead of 3 so we can just change this code or what we can do is just use the same code and initialize k with 2 so let's go there and यहाँ पर मैं k को manually 2 कर देता हूँ let's run it look it works and it was pretty much same questions so it got accepted तो second question कभी कुछ था ही नहीं we just need to solve the third question with the optimized way तो उसके बाद second question आराम से easily solvable है so after this let's move on to the fourth problem और as I had promised कि ये सबसे easy question है amongst these three questions or the four questions but ये है कि ये आपने कभी पहले encounter करा हो या आपने पहले कभी देखा हो सो आज का फोर्थ क्वेश्चन जो था वो पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट में सर्विस नाउ पे आ चुका है सो जिसने कभी वो क्वेश्चन एनकाउंटर करा होगा सो दे मस्ट हैव seen this question on other platforms or in their practice. So the question was like there existed two undirected trees with n and n nodes numbered from 0 to n minus 1 and 0 to n minus 1. ठीक है so let's write it down. So the fourth problem is based on trees and उन्होंने बोला यार अनडायरेक्टेड ट्रीज है so I consider them to be graph कोई डिफरेंस नहीं है उसके इसमें so basically two trees हैं ठीक है टू ट्रीज में से एक है n nodes 0 to n minus 1 and the second is n nodes with 0 to n minus 1 obviously बात है इसके लिए हमें एजेस मिलेंगे एजेस से हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
ये हमेशा जनरली ग्राफ के क्वेश्चन में रहता है कि वी विल गेट एजेस फ्रॉम विच वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्री। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने ये दिया है यू आर गिवन टू डी इंटीजर अरे एजेस वन एंड एजेस टू ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली इंडिकेट्स दिस। सिंपल वही है यार कि हमें एजेस गिवन होंगे कि कौन से दो नोड्स के बीच में या कौन से दो वर्टेक्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। आप उसको फॉर्म कर लो। प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यू मस्ट कनेक्ट वन नोड फ्रॉम द फर्स्ट ट्री with another node from the second tree with an edge and return the minimum possible diameter of the related tree. So basically आपको दोनों ट्रीज को कनेक्ट करना है और उन दोनों के बीच में पॉसिबल मिनिमम डायमीटर क्या हो सकता है वो बताना। सो मैं नहीं कह रहा एग्जाम्पल देखो, मैं नहीं कह रहा कि और कुछ समझो उसमें जाकर के एक बेसिक सा आइडिया मेरे को दो। व्हाट इफ मैं आपको तीन कंडीशन देता हूँ। पहली कंडीशन, व्हाट इफ ट्री वन जो है ना वो बहुत 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 बड़ा है एज कम्पेयर टू ट्री। कैसे? लेट्स सी। लेट्स सी कि ट्री वन ऐसा कुछ है। थोड़ा क्लियरली बनाते हैं। ठीक है। और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको कि यार ट्री वन काफी बड़ा है। ऐसा कुछ ट्री है, इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, ये भी कुछ। ये ट्री वन। ठीक है। और ट्री टू क्या है यार? ट्री टू ना कुछ ऐसा। आवर एंड गोल इज व्हाट? मेरा एंड गोल क्या है इस केस में? मेरा एंड गोल क्या है मेरे को इतना बताओ। मेरा एंड गोल ये है कि यार मुझे इन दोनों ट्रीज को ज्वाइन करना है। किसी भी नोड को किसी भी नोड से बना करके एक वर्टेक्स बना लेनी है। इन्हें ज्वाइन करना है और जो फिर मैक्स डायमीटर बने उसको मिनिमाइज करा लेना है यार कि यार वो ना मिनिमम होना चाहिए। डायमीटर निकालना इज नॉट अ वेरी मच की बहुत मुश्किल चीज है। वो बहुत इजीली एक्सप्लेन होती है। बट अगर हम उस क्वेश्चन को देखें तो क्या है यार, मैक्स डायमीटर फाइंड आउट करो और वो मिनिमम होना चाहिए कि ज्वाइन कराने के बाद जो भी डायमीटर निकले वो मिनिमाइज हो। या मैं बेसिकली ये बोल दूं ज्वाइन कराने के बाद डायमीटर मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं इस बड़े ट्री को, मेरे को बेसिकली मिनिमाइज कराना है, तो मैं इस छोटे ट्री को मतलब बेसिकली जो नया ट्री इसमें जुड़ेगा आकर के ये वाला, मैं उसको ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूँ। तो क्या मैं कभी कोई सेंसिबल चीज ये करूंगा कि मैं इस लास्ट नोड को इस लास्ट नोड से जोड़ दूंगा अभी ले जाकर के? क्या ये मेरा डायमीटर छोटा करके देगा कभी जिंदगी में? कभी नहीं करके देगा। ये हमेशा उसको बढ़ा ही देगा। मैं तो क्या चाहता हूँ यार, डायमीटर छोटा है मेरा। तो मेरा सेंसिबल चीज क्या होगी कि मैं इसको उठा करके ना कहीं बीच में ऐसी जगह जोड़ दूं जहां से ओवरऑल डायमीटर को ना फर्क पड़े। ओवरऑल डायमीटर इसी ट्री का रह जाए। क्योंकि इस ट्री से मैं इस डायमीटर से कम तो उसको ले ही नहीं सकता। मान लो लेट इसका डायमीटर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका ओरिजिनली डायमीटर है 8 एंड इसका ओरिजिनली डायमीटर है 3, तो सॉरी 2। तो यार इस डायमीटर को तो मैं कभी रिड्यूस करा ही नहीं सकता ना। मैं इसको बढ़ा सकता हूँ बट बढ़ाना तो मुझे है ही नहीं, मुझे मिनिमाइज कराना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको उठा करके कहीं बीच में ऐसी जगह जोड़ देता हूँ कहीं भी कि यार मेरा डायमीटर मैक्स यही रह जाए, इससे ऊपर ना जाए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा डायमीटर यही रहेगा। और व्हाट इफ ये उल्टा होता कि यार अगर उल्टा होगा तो जो ट्री टू का डाया है इट विल बी मच 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 ग्रेटर देन ट्री वन। तो अगर मैं इसी कंडीशन को उल्टा बना दूं कि यार मेरा ट्री टू कुछ बहुत बड़ा है, ये मेरा ट्री टू है। ठीक है। और ये मेरा ट्री वन है। तो क्या मैं कभी एक सेंसिबल काम करने के वे में मैं इसको ले जाकर के यहाँ छोड़ूंगा? कभी नहीं जोड़ूंगा। वो ओवरऑल डायमीटर को इंक्रीज ही करेगा, वो ओवरऑल डायमीटर को बढ़ाएगा। तो मैं ये वाला काम तो कभी करूंगा ही नहीं। मैं क्या करना चाहूंगा, इसको उठा करके नहीं बीच में जोड़ लूंगा कि वो डायमीटर को अफेक्ट ही ना करे। मैक्स डायमीटर यही वाला रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, माई डायमीटर विल बी, या फाइनल डायमीटर बेसिकली अगर बोलूं तो वो किसका होगा? वो होगा ऑफ ट्री टू।
अब इन दोनों में से जो मैक्स है, ट्री वन का मैक्स है या ट्री टू का मैक्स है, वही होगा, मैं उससे कम तो कभी करा ही नहीं पाऊंगा। सो बेसिकली मेरा एक ऑप्शन क्या है कि यार मैक्स ऑफ डायमीटर वन और डायमीटर टू, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो तो यार होगा ही होगा, मैं उससे कम तो कभी कर ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास है ही नहीं। बट वट इफ ये इतना छोटा ना हो, ये दोनों ना इक्वल लेंथ के हो। इक्वल लेंथ के इन द सेंस कि दोनों ट्रीज में बहुत डिफरेंस ना हो, माइनर सा डिफरेंस हो, इंस्टेड ऑफ लाइक एक या दो लेंथ के डिफरेंस हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो उस केस में क्या होगा, जो हम अभी बीच में जोड़ रहे थे, ये छोटे से ट्री को उठा करके इधर बीच में कनेक्ट करा रहे थे, तो ये कुछ बहुत डिफरेंस क्रिएट करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना है, एक दो तीन, ये दो कभी डिफरेंस क्रिएट करेगा ही नहीं। मैं अगर और सेफ खेलना है मुझे, मैं यहाँ कहीं ज्वाइन करा लूँ, कहीं भी करा सकता हूँ, बट ये कभी डिफरेंस क्रिएट करेगा ही नहीं मेरे लिए। मेरे लिए इशू क्रिएट करेगा ही नहीं है किसी भी केस में। तो वहां मेरे लिए क्या मैटर करेगा, वहां मेरे लिए मैटर करेगा यार कि मैं इन दोनों ट्री को ऑप्टिमली जोड़ूं, कि जो ओवरऑल डायमीटर निकल करके आएगा वो यार मिनिमाइज ही रहे। अब वो कैसे रहेगा? सीधी सी बात है यार, लेट्स सपोज ये दोनों ट्री हैं, मैं इस ट्री को कभी यहाँ जोड़ूं, क्या होगा, वट विल हैपन? तो बेसिकली अगर इसका डायमीटर शुरू में इतना सही है, दो लेंथ का, ये यहाँ जुड़ने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, एक तो इन्हीं का बढ़ेगा कि जो ज्वाइन करें हमने आपस में, प्लस उसका जो ओरिजिनली था, तो ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस, ये तो कभी मिनिमाइज कराएगा ही नहीं ना। ये तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे लिए आपस ही खड़ी करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि यार ये ऐसा नहीं, कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अब क्या करूं मैं? अगर मैं एक चीज इसमें बताना चाहूँ कि यार मैं इसको यहाँ से कहीं से भी ज्वाइन कराऊंगा, तो बेसिकली जहां से ज्वाइन कराऊंगा उसके बाद जितना डायमीटर बचेगा, वो उतनी लेंथ ना उस डायमीटर में ऐड कर देगा ले जाकर के। तो वो तो मैं चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट किसी एक की तो प्रिजर्व रहे डायमीटर, मैं उतने के अंदर ही लिमिट में काम कर जाऊँ। वो हमने देख लिया कि यार अगर बहुत ही लेंथ डिफरेंस होगी तो जिसका मैक्सिमम है मैं उसके अंदर छोटे ट्री को ले जाके कहीं भी जोड़ लूँ, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा ही नहीं मेरे लिए। बट जब ऐसा सेम होगा, तो उस केस में ऑप्टिमल क्या है? उस केस में ऑप्टिमल है कि मैं दोनों का सेंट्रॉइड कनेक्ट करा दूं। सेंट्रॉइड कनेक्ट करा दूं मतलब, सेंट्रॉइड कनेक्ट करने का मतलब है यार कि जो मिडिल नोड है मैं उन्हें कनेक्ट करा दूं। क्यों भाई? अभी हमने देखा कि हम इसको कहीं भी ऐड करेंगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको, व्हाट इफ मैं इसको मिडिल नोड, इसका मिडिल नोड है ये, इसका मिडिल नोड है ये, इनको कनेक्ट कराऊं, अगर मैं इनको कनेक्ट कराता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ट्री। ये तो यही वाला आ गया यहाँ, मिडिल नोड से कनेक्ट हो गया। तो डायमीटर में क्या इफेक्ट पड़ा? इसका हाफ डायमीटर यूज होगा, इसका हाफ डायमीटर यूज होगा, इसका कितना यूज होगा यार? इसका भी तो हाफ ही यूज होगा अब, क्योंकि सेंट्रॉइड से कनेक्ट कराया हो। सॉरी, हाफ ऑफ डाया टू, इन दोनों का हाफ हाफ यूज होगा, प्लस वन ये कि यार इन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए एक लेंथ तो मैंने जोड़ दी ना यार, वो तो मैं रोक ही नहीं सकता यार किसी भी कीमत पर। तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई मेरी ऑप्शन टू की, कि यार डाया वन का हाफ प्लस डायमीटर टू का हाफ प्लस वन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं ट्री को कहाँ ज्वाइन कराऊं, अगर आप सोचो कि मैनुअली जा जाके ज्वाइन कराऊं कि डीपी ऑन ट्रीज लगाऊं ये करूं, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कभी। बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा और अननेसेसरी। सिंपल ऑप्टिमल वे यही है, या तो यार कोई एक ट्री बहुत बड़ा निकल जाए, उस केस में मेरा छोटा ट्री कहाँ जुड़ेगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बट वट इफ एक बहुत बड़ा नहीं है, दो ट्रीज सिमिलर लेंथ के हैं, तो उस केस में मैं उनको ऑप्टिमली ऐसे जोड़ूंगा कि यार सेंट्रॉइड कनेक्ट कराता हूँ। उस केस में आधा डायमीटर एक का यूज होगा, आधा डायमीटर एक का यूज होगा, प्लस वन जो मैं कनेक्ट करा रहा हूँ, ऑप्शन टू ये बन जाएगा। अब इन दोनों में से जो मैक्स निकल के आएगा, मैक्स ऑफ ऑप्शन वन या ऑप्शन टू, वो मेरा आंसर है। क्योंकि देख, मैक्सिमाइज जो चीज एक्चुअल में है मैं उसको तो कभी कम कर ही नहीं सकता, मैं बस ये कि उनको ऑप्टिमाइज रख सकता हूँ, बट ओवरऑल दोनों को कम नहीं कर सकता। तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो मेरा आंसर है, वो मेरा मिनिमम डायमीटर ऑफ जॉइंट ट्रीज का आंसर है। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ट्री वन का
डायमीटर फाइंड करना है ट्री टू का, डायमीटर फाइंड करना है एंड आउट ऑफ दीज टू मेरा आंसर क्या होगा, या तो डायमीटर वन ही मेरा आंसर है, या मेरा डायमीटर टू ही आंसर है। आइदर अगर मैं जोड़ता हूँ इन लोगों को तो डाया वन बाय टू प्लस डाया टू बाय टू प्लस वन, ये बेसिकली ऐसे तो नहीं होगा खैर, वी नीड टू ऐड हियर, क्योंकि अगर ऑड हुआ उस केस में वी नीड टू डू दिस प्लस डाया टू प्लस वन बाय टू और प्लस वन, ये मेरे करंट उसके लिए, इन तीनों का जो भी मैक्स होगा ये मेरा आंसर है। कुछ सोचो, हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस करा, पहला तो चलो इजी रहता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कंपैरेटिवली, सेकंड थर्ड एक्सप्लेनेशन फोर्थ का कितना सिंपल है, कितना इजी है। जिसको ये चीज ऑब्जर्व हो गई वो क्वेश्चन को हाथ कैसे कर देगा। मैंने पहले डी अटेंड करा था सी से, अब खुद सोचो। और डायमीटर फाइंड आउट कैसे करते हैं, डायमीटर ट्री में उस सिंपली फाइंड आउट करते हैं रिकर्जन या डीएफएस के थ्रू। डाया फाइंड कैसे करेंगे, डायमीटर कैन बी फाइंड आउट बाय लाइक डीएफएस, और उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, दो वैल्यूज रखते हैं, एक एच वन एक एच टू। एच वन इज बेसिकली मैक्स हाइट फ्रॉम करंट नोड एंड एच टू इज लाइक मैक्स हाइट, सॉरी सेकंड मैक्स हाइट फ्रॉम करंट नोड। जब मेरे पास ये दोनों चीज आ जाती हैं तो मैं इन दोनों को ऐड करा के प्लस वन कर सकता हूँ, प्लस वन तो नहीं ऐड करा सकता हूँ, एच वन प्लस एच टू, ये मेरा डायमीटर है। हर नोड के लिए मुझे ये फाइंड आउट करना है, फिर कराते जाना है, किसी भी एक नोड से फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दो, तो जो मैक्सिमम मिलेगा दैट विल बी माय आंसर। सो माय डाया वुड बी मैक्सिमम ऑफ दिस फ्रॉम डायमीटर, सिंपल। ये इतने सा अप्रोच था। तो आपको जो गिवन एजेस दो तरीके के गिवन है, आपको एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, उससे आपको उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, सेकेंड ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, उसका डायमीटर फाइंड आउट करना है, एंड उसके बाद ये सिंपली ये अप्रोच लगानी है एंड यू विल गेट योर आंसर। यही मैंने यहाँ सेम कोड करा हुआ है। डायमीटर फाइंड आउट करा, फाइंड डायमीटर फंक्शन में एजेस वन भेज करके, एजेस वन बेसिकली करेगा क्या, वहां पे एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेगा हर एजेस को बाय डायरेक्शनली डाल करके। एक मैंने मैक्स हाई बनाया और ये डायमीटर फंक्शन कॉल कर दिया मैंने। ये डायमीटर फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली एच वन एच टू कैलकुलेट करेगा फॉर एवरी नोड, और बस ये पेरेंट साथ में जाएगा, पी ओ इज लाइक पेरेंट ऑफ यू, और उस पर दोबारा कॉल नहीं करेगा क्योंकि वरना फिर वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और ये बेसिकली जैसे हम दो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कि जो हाइट आई, करंट हाइट जो है वो, इफ इट्स ग्रेटर देन द मेरी मैक्सिमम हाइट एच वन, तो मैं एच वन और एच टू को आपस में स्वैप करा कर एच वन को मैक्सिमम वैल्यू दे दूंगा, एंड नहीं है तो एच टू से चेक कर लूंगा क्या उससे बड़ी आई, एंड उसी के थ्रू लास्ट में मैं ये बेसिकली एच वन प्लस एच टू से मैक्स करा रहा हूँ, और यहाँ से मेरी डायमीटर निकल के आ जाएगा मैक्स ऑफ एच वन। तो बेसिकली कितना सा अप्रोच था ये, बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बस ये था कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। ऑब्जर्वेशन इसमें काफी कीन होनी चाहिए। इसको भी हम सबमिट करके चेक करेंगे तो इट विल बी एक्सेप्टेड, यही सेम कोड, थोड़ा सा मैसी था कोड मेरा और टेम्पलेट बेस्ड था, ये थोड़ा क्लीन कोड लिखा है, बट इट विल बी एक्सेप्टेड। सो आई होप ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे यार। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो आप कमेंट में या पर्सनली मेरे को पिंग कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।